अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज रायान मलिक एंड आई एम हियर टू डिस्कस द टेस्ट पेपर 2 ऑफ फिजिक्स फेज 2 क्लास 10th. It's composed of chapter number 14, 15, 16, 17 and 18. तो आइए डिस्कस करते हैं आज का पेपर। तो फेज 2 टेस्ट पेपर 2 and the chapter number 14, 15, 16, 17 and 18. The second half book, and as you know that your paper consists of two types, objective type and subjective type, and in objective type there are 15 minutes and you have to solve the 12 MCQs. So we shall discuss one by one, and the first MCQ is the unit of power is, options are A ampere, B resistance, C watt and D both A and B. So power का unit होता है watt. The MCQ, the option C is correct. C, that is watt. The second MCQ, the number of turns in a step down transformer is, options are A, number of turns in secondary is greater than number of turns in primary, and the B, number of turns in primary is greater than the number of turns in secondary, and C, the number of turns in secondary that is equals to number of turns in primary, and the D, none. So step down transformer हम उसे कहते हैं जिसमें आपके secondary voltages जो होते हैं, that is the output voltage, वो कम होते हैं as compared to the input voltage, that means the primary ones. So we can say कि step down transformer में number of turns जो secondary side पर होते हैं वो हमेशा less होते हैं as compared to the number of turns in primary side. So the option B is correct, which is the number of turns in primary is greater than the number of turns in secondary. Clear? The third MCQ, the agency which makes the charges to flow, options are A resistance, B current, C charge and D voltage. So voltage एक ऐसी एजेंसी है, basically voltage एक ऐसी force होती है जो कि charges को flow करवाती है. Okay, so we can say that option D is correct, voltage. The fourth one, the unit of electric current is, options are A meter, B kilometer, C ampere and D meter square. So current का unit होता है ampere. So option C is correct, ampere. The fifth MCQ, the quantities which are discontinuous are, options are A analog quantities, B digital and C discrete and D none. So कौन सी quantities जो हैं वो discontinuous होती हैं? जो continuous quantities होती हैं उन्हें हम कहते हैं analog quantities, और जो digital quantities होती हैं उन्हें हम कहते हैं they are discontinuous quantities. Okay, so option B is correct, digital quantities. The sixth MCQ, which one of the following is the formula to calculate the electrical energy? Options are A, W is equals to V into I, B, W is equals to P over T, and C, W is equals to I square RT, and D, all of these. So, इनमें से कौन सा formula जो है जिससे आप electrical energy calculate कर सकते हैं? So, we can say that option A is correct. Clear? The seventh MCQ, the relation between the relative motion of bar magnet with induced EMF is, options are A directly, B inversely and C not and D all of these. So अब एक बार मैग्नेट का जो मोशन है उसका इंड्यूस्ड EMF के साथ क्या रिलेशन होता है? They are directly proportional to each other, because जितना ही बार मैग्नेट का मोशन जो है वो फास्ट होगा उतना ही वहां पर EMF जो है वो ज्यादा इंड्यूस हो रहा होगा. Clear? So we can say they are directly linked to each other. So option A is correct, which is directly. The 8th MCQ, current which changes its direction is, options are A AC, B DC and C conventional current and D none of these. So वो current जो कि अपनी direction change करता है continuously उसे हम कहते हैं alternating current, जिसको हम denote करते हैं AC से. So option A is correct, AC. The 9th MCQ, what is the direction of magnetic field in a solenoid is in the direction of, options are A south to north, B north to south and C south to south and D none of these. So magnetic field की जो direction एक solenoid के अंदर जो है inside, वहां पर जो magnetic field की direction होती है वो हमेशा south to north pole होती है. So option A is correct, south to north pole. Clear? The 10th one, which of the following is a component of CBIS? CBIS stand for Computer Based Information System. So कौन सा इनमें से component है CBIS का? Options are A procedures, B software, C people and D all of these.
तो ये तमाम कंपोनेंट्स हैं CBISK, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। 11th वन, अल्फा रेज आर, ऑप्शंस आर A इलेक्ट्रॉन्स, B हीलियम न्यूक्लियस, C न्यूट्रॉन्स एंड D नन ऑफ अबव। सो अल्फा रेज जो है बेसिकली दे आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, जिसे हम हीलियम न्यूक्लियस कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, हीलियम न्यूक्लियस। द 12th वन, which of the following breaks a nucleus into two smaller nucleus? Options are A fission, B fusion and C both A and B and D none of these. So इनमें से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो कि एक लार्ज न्यूक्लियस को ब्रेक करता है स्मॉलर न्यूक्लियस में? दैट इज द फिजन प्रोसेस, जो कि हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में, जिसमें यूरेनियम न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट डाउन होकर फर्दर बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फिजन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? सो आई होप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। सो नाउ मूव टू द सब्जेक्टिव टाइप, in which consist of two parts, part 1 and part 2. Part 1 has consist of short questions which is divided into 3 parts further. Question 2, 3 and 4, and each question has total 8 questions in which you have to choose the best 5 short questions and answer it. So we shall discuss the first one, the question number 2. Attempt any 5 parts from the following. So आपने कोई से best 5 parts आपने choose करने हैं और आपने इन्हें attempt करना है. And the first question is define electric current. So what is electric current? अब जैसे कि मैं आपको प्रीवियस पेपर्स में भी बता चुका हूं कि पेपर में प्रेजेंटेशंस बहुत मैटर करती है। सो आपने इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से करना है कि आप रोमन में या नंबर्स में आप पहले मार्कर से हेडिंग देंगे 1 एंड देन आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन की प्रॉपर एक हेडिंग बनानी होती है। जैसा कि इस क्वेश्चन में जो कि बहुत इजी है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, जस्ट आप मेन हेडिंग बनाएंगे इसकी इलेक्ट्रिक पावर, देन जो कि सेंटर्ड में होगी, एंड देन हम लेफ्ट लाइन पर सब हेडिंग देंगे विच इज डेफिनेशन। सो आपने इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन करना है, दैट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स यूनिट इज वॉट एंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला विच इज P इज इक्वल्स टू VI। क्लियर? अब लाइक इस क्वेश्चन में से कि फॉर्मूला हमने मेंशन किया P इज इक्वल्स टू VI, तो हम फॉर्मूला को भी हम प्रॉपर सेंटर्ड में मेंशन करेंगे बाय यूजिंग मार्कर, जो कि पेपर को आपका अट्रैक्टिव बनाएगा और आपका क्वेश्चन भी जो है वो एक अट्रैक्टिव बन जाएगा। Clear? The second one, state Joule's law. And as I have already conveyed you कि जब भी law आता है पेपर में तो law की definition नहीं होती, इसकी statement होती है। Clear? So Joule's law को आपने state करना है, center में main heading देंगे Joule's law and then आप left hand पे sub heading देंगे statement and then you can state it as the amount of a heat energy generated in a resistance due to the flow of electric current is equal to the product of the square of the current I, the resistance R and the time T. So similarly इसका भी फॉर्मूला आपने मेंशन करना है, that is W is equals to I square RT. Clear? The third one, how a force can be increased in a current carrying conductor. So अब इस क्वेश्चन का हम हेडिंग किस तरह से बना सकते हैं, like force increase in a current carrying conductor. Clear? तो ये इसकी हेडिंग इस तरह से बन सकती है कि करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स इंक्रीज हो रही है, किस तरह से फर्दर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। A force can be increased on a current carrying conductor by changing the magnetic field strength. Clear? कि magnetic field strength को change करके हम force जो है वो increase कर सकते हैं। If I discuss you कि force किस तरह से develop होती है कि जब दो magnetic fields आपस में interact करते हैं तो उसके interact करने से force develop होती है। अब अगर हम इन magnetic field की strength को बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली जो फोर्स इंड्यूस हो रही है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? द फोर्थ वन, डिफाइन ओहम्स लॉ। आपने ओहम्स लॉ को स्टेट करना है, सेंटर में मेन हेडिंग देंगे ओहम्स लॉ एंड देन द साइड पे सब हेडिंग देंगे लेफ्ट लाइन पर, दैट इज द स्टेटमेंट एंड देन आपने फर्दर उसको स्टेट करना है और एट द एंड आपने इसका फॉर्मूला भी मेंशन करना है विच इज V इज इक्वल्स टू IR। द फिफ्थ वन, डिफाइन अल्टरनेटिंग करंट। सो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? वो करंट जो कि कॉन्टिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, तो उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? द सिक्स्थ वन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। सो एक सोलेनॉइड में आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप किस तरह से बता सकते हैं? दैट इज द राइट हैंड ग्रिप रूल, जो कि हमने स्टडी किया था कि हम उस सोलेनॉइड को हम राइट हैंड से ग्रिप करते हैं। अब जैसे ही हम उसको ग्रिप करते हैं, आपने उसको ग्रिप इस तरह से करना होता है कि जो आपकी 4 फिंगर्स हैं ये इंडिकेट करती हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को। लेट्स सपोज कि उस सोलेनॉइड में जो करंट की डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। अब जब वो एंटी क्लॉकवाइज होगी
तो आपने थंब को इंडिकेट करना होता है और थंब जो है ये आपको बताता है कि उसमें नॉर्थ पोल किस साइड पर है। क्लियर? सो इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। सिमिलरली अगर आपका करंट जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा तो फिर हम फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करेंगे और अब आपका थंब जो है वो इस साइड पर डायरेक्ट कर रहा है, दैट मींस कि अब नॉर्थ पोल जो है वो इस साइड पर होगा। क्लियर? सो इस तरह से हम राइट हैंड ग्रिप रूल के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि एक सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर? इस क्वेश्चन की हेडिंग आप इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। क्लियर? सेवेंथ वन, डिफाइन लेंस लॉ। सो आपने यहाँ पे लेंस लॉ को स्टेट करना है। सेंटर में मेन हेडिंग देंगे लेंस लॉ एंड देन साइड पे हम लेफ्ट लाइन पर सब हेडिंग देंगे विच इज द स्टेटमेंट, और फर्दर आपने उसको जस्ट स्टेट करना है। लेंस लॉ क्या है? जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की फर्दर डायरेक्शन बताता है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन अपने कॉज को हमेशा अपोज करती है। क्लियर? द एथ वन, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। सो म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? आपने सिर्फ इस फिनोमिना को डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है। सो सेंटर में मेन हेडिंग देंगे म्यूचुअल इंडक्शन एंड देन फर्दर आप इसको एलेबोरेट करेंगे, टू प्रोड्यूस एन ईएमएफ इन अ सेकेंडरी कॉइल विद द हेल्प ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्राइमरी नेबरिंग कॉइल। क्लियर? So that this phenomena is called mutual induction. So I hope your part 2 आपको clear हो गया होगा. Now part 3, attempt any 5 parts from the following. Again you have to attempt the first 5 short questions जो कि आपको बहुत अच्छे से याद हो. The first one is what is ideal transformer? Ideal transformer क्या होता है? वो transformer जिसकी input power equal हो जाए output power के. So that is the ideal transformer. But we should very well know कि इस दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं होती. हर चीज में कुछ ना कुछ लॉसेस मौजूद होते हैं. सो ट्रांसफार्मर में भी कुछ लॉसेस मौजूद होते हैं. दैट्स वाई आइडियल ट्रांसफार्मर कोई भी नहीं होता. बट हम फर्दर इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज अ वन इन विच द पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल टू द पावर ऑफ सेकेंडरी. क्लियर? और उसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% होती है. क्लियर? द सेकंड वन इज डिफाइन स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर मींस कि जिसमें आउटपुट पर वोल्टेजेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं एज कंपेयर टू द इनपुट वोल्टेजेस. सो सेंटर में मेन हेडिंग देंगे अगेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड देन द लेफ्ट लाइन पे सब हेडिंग हम देंगे डेफिनेशन. द ट्रांसफार्मर व्हिच इज यूज्ड टू इंक्रीज द इनपुट वोल्टेज इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफार्मर. In a step up transformer, the number of turns in the secondary coil is always greater than the number of turns in the primary coil. So NS is greater than NP. Clear? The third one, what is NOR gate? So NOR gate क्या होता है? NOR gate means कि जो आउटपुट की OR gate की जो आउटपुट होती है वो फर्दर लिंक्ड होती है आगे NOT gate के साथ. Clear? मीन्स कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि OR gate की जो आउटपुट है उसको फर्दर इन्वर्ट कर दिया जाता है. सो इट बिकम्स अ NOR gate. क्लियर? सो आप सेंटर में मेन हेडिंग देंगे NOR gate और आपने इसको डिस्क्राइब इस तरह से करना है. इफ द आउटपुट ऑफ द OR gate is coupled together with the NOT gate, then the output received will be the output of NOR gate. Clear? The fourth one, write some important applications of digital electronics using these days. तो आपने कोई सी भी important applications जो हैं वो आपने यहाँ पर लिखनी है. So most of today's technologies fall under the classification of digital electronics, and digital electronics devices stores and process bits electronically which help the users to work fast. Clear? So आपने यहाँ पर एप्लीकेशंस के नेम भी मेंशन करने हैं जो कि जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा हो. क्लियर? एंड द फिफ्थ वन, व्हाट इज NAND गेट? सो NAND गेट क्या होता है? मींस कि AND गेट की जो आउटपुट होती है अगर हम उसको इन्वर्ट कर दें बाय यूजिंग NOT गेट, सो दैट आउटपुट बिकम्स the gate becomes a NAND gate. Clear? So we can define it as if the output of the AND gate is coupled together with the NOT gate, then the output received will be the output of NAND gate. Clear? The sixth one, write the names of logical gates. तो आपने logical gates के name लिखने हैं. These are AND gate, OR gate, NOT gate, NOR gate and NAND gate. Clear? Now the seventh one, what is NOT gate? NOT gate क्या होता है? NOT gate वो होता है जो कि आपकी input को invert कर देता है और इसका हम एक और नाम भी देते हैं, दैट इज इन्वर्टर. क्लियर? सो सेंटर में अगेन आप मेन हेडिंग देंगे NOT गेट एंड देन आपने उसको एलेबोरेट करना है. दैट गेट्स इज आल्सो कॉल्ड एन इन्वर्टर बिकॉज इट इन्वर्ट्स द इनपुट. इफ द इनपुट इज 1 देन इट्स आउटपुट विल बी 0 एंड इफ इट्स इनपुट इज 0 देन द आउटपुट विल बी 1. क्लियर? द एट्थ वन, डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. सो आपने जस्ट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टर्म को डिफाइन करना है. सो हम सेंटर में मेन हेडिंग देंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड देन द सब हेडिंग इज डेफिनेशन. सो वी कैन डिफाइन इट एज द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू मेक एबल द कंप्यूटर सिस्टम टू ट्रांसमिट डाटा
over the large distance without leaving the place you are working at. Clear? So communication technology, that means के वो टेक्नोलॉजी जिसकी थ्रू कंप्यूटर जो है वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रांसमिट कर सकता है किसी भी एक जगह से दूसरी जगह तक within seconds. Clear? So that is the communication technology. So question number 4, attempt any 5 parts from the following. Again, you have to choose the best 5 parts जो कि आपको बहुत अच्छे से याद हो. And the first part is what are procedures. So procedure क्या है? That is one of the component of the CBIS. So center में again हम main heading देंगे procedure, and then you can write it as these are the rules and the set of instructions to make an information system, and these are written in manuals and documents for use. Clear? The second one is define hardware. So आपने just hardware को define करना है. So hardware are the physical parts of a device which is used to make a system by combining with the software. Okay? So इसको आप further इस तरह से भी define कर सकते हैं. Hardware are the parts of the computer which you can see and touch. For example, the mouse, keyboard, monitor, and the CPU. Clear? So these are all the hardwares. The third one, what is email? So email क्या है? That is electronic mail. Email is a service of sending and receiving of messages or files using internet services, and this is faster and much more reliable than the local postal system. Clear? The fourth one is define the types of radioactivity. तो आपने radioactivity की just types mention करनी है. So जैसे कि यहाँ पर कहा गया define types of means कि आपने further उन radioactivity की types को define भी करना है. Clear? So there are basically 2 types, that is the natural radioactivity and artificial radioactivity. Clear? और further इन types को हमने define भी करना है. The fifth one is define natural radioactivity. So अपने natural radioactivity को define करना है. Some elements in the nature emits radiations. To make them stable, this phenomena is called natural radioactivity. वो elements जो कि naturally radiations को emit कर रहे होते हैं, so इस phenomena को हम कहते हैं natural radioactivity. Clear? The sixth one is define the half-life of a radioactive element. So अपने radioactive element की half-life को just define करना है. Center में main heading देंगे half-life of a radioactive element, and then the sub-heading is the left-aligned heading, that is the definition. So we can define it as the half-life is the time in which the one radioactive element remains half after emitting radiations, and different radioactive elements have different half-life. And the seventh one, define nuclear fusion reaction. So आपने just nuclear fusion reaction को define करना है. In a nuclear fusion reaction, 2 smaller nuclei fuse together to make a larger one. जैसे कि fusion में हमने discuss किया था कि जिसमें एक larger nucleus जो है वो breakdown होता है smaller nucleus में. Similarly, fusion में इसका reverse process है जिसमें smaller जो है वो combine होकर एक larger nucleus बनाते हैं. Clear? So that is the nuclear fusion reaction. And the eighth one is define transmutation. तो आपने just transmutation को define करना है. Center में main heading देंगे transmutation, and then the left line subheading which is definition. So transmutation is the conversion of one radioactive element to other after emitting some radioactive rays or after decay. Clear? So I hope ये part 1 आपको clear हो गया होगा. So now move to part 2, which is composed of 3 long questions, and you have to attempt the best 2 long questions. But remember one thing कि जिस long question का आप part A attempt करने जा रहे हैं, आपने पार्ट बी भी उसी लॉन्ग क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है. अगर आप पार्ट बी किसी और लॉन्ग क्वेश्चन का अटेम्प्ट करते हैं तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो मेक श्योर कि आपके दोनों पार्ट्स जो हैं वो एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के होने चाहिए. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रिकल पावर एंड एक्सप्लेन किलोवाट आवर. सो आपने इलेक्ट्रिकल पावर पर नोट लिखना है कंप्लीटली. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने प्रॉपर इलेक्ट्रिकल पावर को पहले आपने डिफाइन करना है. डिफाइन करने के बाद आपने इसके फॉर्मूले को एलैबोरेट करना है कि इसके फॉर्मूले में आप किस चीज को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देन हम उसका फॉर्मूला मेंशन करेंगे. दैट इज P is equals to I V and P is equals to I square R. Clear? And then at the end आपने पावर का यूनिट भी बताना है कि पावर का यूनिट क्या होता है, विच इज वॉट. और फर्दर इसकी एग्जांपल्स भी बतानी है. जैसे कि हमने बल्ब्स बहुत से सुने हैं, दैट इज 25 वॉट का बल्ब है, ये 50 वॉट का बल्ब है. क्लियर? इस तरह से हम एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं. एंड देन एट द एंड आपने किलो वॉट आवर को भी डिफाइन करना है प्रॉपरली, और फर्दर उसमें यह भी बताना है कि 1 किलो वॉट आवर में टोटल कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट इज 3.6 मेगा जाउल. क्लियर? एंड एट द एंड हम एनर्जी इन किलो वॉट आवर में हम किस तरह से मेजर करते हैं, उस फॉर्मूले को भी प्रॉपर ड्राइव करना है, और देन उसको एक्सप्लेन भी करना है कि इस फॉर्मूले में हम किस किस तरह से वैल्यूज को पुट करके हम किलो वॉट आवर में हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर? सो द पार्ट बी,
two resistance of 6 kilo ohm and 12 kilo ohm are connected in parallel. A 16 volt battery is connected across its ends. So find the values of the following quantities, that is equivalent resistance of the parallel combinations, B current passing through each of the resistance, and C potential difference across each of the resistance. So अब जैसे कि यहाँ पर दो resistance हैं और जो कि parallelly combined हैं आपस में. First of all हमें ये मालूम होना चाहिए कि parallel combination of resistors में हमने R equivalent का formula क्या डिस्कस किया था, which is 1 over R equivalent is equals to 1 over R1 plus 1 over R2. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. इसका आंसर है 4 किलो ओम. क्लियर. सिमिलरली आपने I1 I2 करंट भी आपने फाइंड आउट करना है और आपने वोल्टेजेस भी फाइंड आउट करने हैं, विच इज V1 एंड V2. सो अब वोल्टेजेस जो है पैरेलल में सेम होते हैं, सो वो तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि V1 V2 जो है वो 16 वोल्ट ही होंगे. बट आपने फाइंड करना है करंट I1 एंड I2. जैसे कि हम यहां पर कलेक्टिवली R इक्विवेलेंट हम फाइंड कर चुके हैं. सो इसके बाद हम फॉर्मूला यूज करेंगे I1 इज इक्वल्स टू V ओवर R1. सो V दैट इज 16 वोल्ट और R1 की वैल्यू जो कि है 6 किलो ओम. सो हम इसको यहाँ पुट करेंगे और उसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो आपके पास I1 करंट आ जाएगा. सिमिलरली इसी फिनोमेना के अकॉर्डिंग हम I2 का करंट भी हम फाइंड कर सकते हैं, विच इज I2 इज इक्वल्स टू V ओवर R2. So V जो है that is again 16 volt and R2 that is the 12 किलो ओम. So हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास I2 करंट आ जाएगा. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज इंटरनेट एंड राइट सम सर्विसेज ऑफ इंटरनेट. सो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनेट को डिफाइन करना है कि इंटरनेट क्या है, इसकी एग्जांपल्स आपने देनी है, उसके यूजेस आपने बताने हैं और फिर राइट सम ऑफ द सर्विसेज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट सर्विसेज दैट इज द वेब ब्राउजिंग एंड द ईमेल. क्लियर. सो इनकी इन सर्विसेज को भी हम प्रॉपरली वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और आपने वेब ब्राउजर्स जैसा कि ओपेरा, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, ठीक है, इन सबको आपने एज एन एग्जांपल यहाँ मेंशन करना है. और ईमेल्स की फिर आपने फर्दर एट द एंड एफिशिएंट इसका जो यूज है वो भी आपने बताना है कि इसका एफिशिएंट यूज क्यों है, कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, हम ईमेल क्यों इस्तेमाल करते हैं. क्लियर. सो हम थॉरोली इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. एंड देन द पार्ट बी, a transformer is needed to convert a mains 240 volt supply into a 12 volt supply. If there are turns on the primary coil, then find the number of turns on the secondary coil. So अब जो कि एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो 240 volt supply को convert कर रहा है 12 volt supply में, that is the voltage of primary side is 240 volt and the voltage of the secondary side VS that is equal to 12 volt. और number of turns primary side की भी आपको given है which is 2000. तो आपने सिर्फ secondary side के number of turns calculate करने हैं NS. So as we know the formula that is NS over NP is equal to VS over VP. जैसे कि आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है NS, तो NP को हम क्रॉस में लेकर जाके हम मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्दर आपने इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड के आ जाएंगे विच इज 100 टर्न्स. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस. तो आपने रेडियो आइसोटोप पर नोट लिखना है. जैसे कि हम रेडियो आइसोटोप को फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे और फर्दर आपने उसके यूजेस भी मेंशन करने हैं विद प्रॉपर हेडिंग, that is like tracers, medical treatment and carbon dating. तो इस तरह से हम इनकी headings लेके proper इनको explain करेंगे. So it becomes a proper long question. Now the part B, a sample of certain radioactive element has a half-life of 1500 years. If it has an activity of 32,000 counts per hour at the present time, then plot a graph of the activity of this sample over the period in which it will reduce to 1/16 of its present value. So इस न्यूमेरिकल में आपने ग्राफ भी प्लॉट करना है. जैसा कि हमें एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ गिवन है विच इज 1500 years और जो कि ओरिजिनल आपके पास जो कि इनिशियल काउंट रेट जो है वो आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज 32,000. अब जो अमाउंट है वो आपकी रिमेनिंग जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाती है 1/16. सो बेसिकली यहाँ पे आपने नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है कि कितनी हाफ लाइफ के बाद जो अमाउंट है वो फर्दर रिमेनिंग जो है वो रह जाएगी 1/16. क्लियर. सो अब जैसे कि यहाँ पे हाफ लाइफ हमें गिवन है 1500 years, इनिशियल काउंट रेट पर और भी गिवन है विच इज 32,000. सो रिमेनिंग जो है वो रह जाएगा 1/16 विच इज द इनिशियल काउंट रेट बाय 16, दैट इज द 32,000/16. सो एज वी नो द फॉर्मूला दैट इज n is equals to n naught into 1/2n. यहाँ पे n को बेसिकली जो काउंट रेट है उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है a के साथ. सो a is equals to a naught into 1/2n. सो फर्दर a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे a naught की जगह दैट इज 32,000
into 1/2n. So 32,000 से कैंसिल आउट हो जाएगा. So रिमेनिंग रह जाएगा 1/16 is equal to 1/2n. So 16 को यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 raised to the power 4. अब जैसे कि 1/2 जब बेस सेम हो जाएगी तो पावर जो है आपस में इक्वल हो जाती हैं. So n is equals to 4. That means कि after 4 half life the counter will be reduced to 1/16. Clear? So I hope ये पेपर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा and best of luck for your final exams. Take care. Allah Hafiz.